Assalamu alaikum dear learners and a very good evening. Welcome to Ababil English Level 1. In the last video we discussed about few parts of speech. We talked about conjunctions, adverbs, interjection and preposition. We also talked about their examples and how they can be used in a sentence. In today's video we are going to talk about a few very important and interesting elements of English communication. Yes, we're talking about figures of speech. Now, what is a figure of speech? Figure of speech or a rhetorical figure is an intentional deviation from ordinary language. It's chosen to produce a rhetorical effect. Now, before we move on, you must be wondering what is a rhetorical effect? So, rhetorical effects are basically stylistic effects that you use to beautify your communication, whether you're talking about the written communication or the verbal communication. These figures of speech are used to beautify your expression and how you compose the sentences and how you want to communicate your ideas. So let's start. We are going to start with idioms. Here you can see a very important and very interesting idiom, but let's first understand what an idiom is. An idiom is a phrase or an expression. It has a figurative style. It's sometimes it's something literal in meaning, and we use to communicate our message more clearly. For example, go the extra mile. This idiom is used in its literal sense that in order to achieve something best, you have to go the extra mile. You have to travel more. You have to cover a longer distance than anybody else. So, जब आपको ये कहना हो कि आपको बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए या बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस एक्स्ट्रा मेहनत को इंग्लिश में कहेंगे go the extra mile. You have to walk an extra mile to pass with flying colors. So, going the extra mile is in literal meanings and it's a figurative meaning as well. Literal meaning का मतलब है कि exactly वही मतलब है. Figurative का मतलब है कि मुहावरतन कहा गया है. उसके लफ्जी मायने वो नहीं है, लेकिन मुहावरतन उसको इस्तेमाल किया जाता है. So going the extra mile has the literal meanings and you use it when you have to talk about making an extra effort to achieve something good. Then we have another, to go down in flames. This means that sometimes you put every effort that you can do in something and to achieve something great, but you fail spectacularly. I mean, the failure is so big that you express it by using the idiom to go down in flames. Next we have cat got your tongue. And this is not a plain sentence like I have said. It's an interrogative tone. So you'll say, cat got your tongue, which means you're asking the other person that I'm constantly asking you something. You're not weighing in, you're not talking about your own opinion. So we say that, can't you speak? All these elements are used in rhetorical effects and you use it as an idiom. Next we have once in a blue moon. This is again an idiom. It's a very literal thing, because if you Google blue moon, come back in the project work and tell me about it, because blue moon is something that happens once in a lot of years. So जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, बहुत कम होती है, फॉर एग्जांपल 10 साल में एक बार, मे बी 100 सालों में एक बार, या जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को कहना चाहते हैं कि आप मेरी तरफ बहुत कम आते हैं, तो उसमें आप अंग्रेज़ी में जब उसको कम्युनिकेट करेंगे तो उसे कह सकते हैं कि once in a blue moon, you visit me once in a blue moon. कि इसी तरह है जैसे ब्लू मून जो है वो 100 सालों में मे बी एक बार निकलता है या 500 साल में एक बार निकलता है, आप भी उसी तरह कम नज़र आते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसमें ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. देन वी हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. This is used when you're feeling very nervous. For example, in the picture, there's a lady who is on the stage. She's in front of the mic, but probably she has stage fright. Probably she doesn't have that much command over the language. Probably she cannot communicate. She's very afraid. She's anxious. She's nervous. तो उसमें आपको sometimes literally ऐसा ही होता है कि आपको लगता है कि आपके
स्टमक में, आपके पेट में कुछ हो रहा है, तो वो जो कुछ हो रहा होता है परेशानी से, एंजाइटी, नर्वसनेस या स्ट्रेस की वजह से, उसको अंग्रेज़ी में उसको कहने के लिए उन्होंने मुहावरा बना दिया, ईडियम बना दिया, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. देन वी हैव स्नग एज अ बग इन अ रग. ये बहुत ही मज़े का है आखिरी वाला, स्नग एज अ बग इन अ रग. अब इसको समझने से पहले ये समझ लें कि स्नग का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत टाइट. फॉर एग्जाम्पल स्नग फिट जीन्स, स्नग फिट जैकेट जो कि बहुत टाइट होती हैं, जिसको आप स्किन फिट भी समटाइम्स कहते हैं, उसको टेक्सटाइल की ज़ुबान में या जार्गन में स्नग फिट भी कहते हैं. तो स्नग एज अ बग इन अ रग. फॉर एग्जाम्पल किसी रग में छोटा सा कीड़ा या बग जो है वो बहुत टाइटली पैक हो गया. ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं वार्म और कॉजीनेस दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आजकल बहुत किसी सर्दियों का सीज़न है, तो उसमें आप कहेंगे कि आई एम स्नग एज अ बग इन अ रग, विच मीन्स यू आर वार्म एंड कॉजी इन द ब्लैंकेट और इन अ कोल्ड में भी, इन यू डोंट वांट टू गेट आउट, यू डोंट वांट टू गो आउट, फेच द डोर और समथिंग एल्स. तो उसमें यह मुहावरा इस्तेमाल हो सकता है. ऑलराइट, इन दिस पिक्चर guess what you're seeing. There are a few types of beans, but we're not talking about them. We're talking about another idiom, which is Jamil is full of beans. Now what does that mean? As you know, if you're consuming chicken or mutton or beef, all the types of meats are full of proteins. Similarly, all the beans and pulses and lentils, you see what I'm talking about? लोबिया की जितनी अक़साम हैं और जितनी दालें हैं वो सब की सब बहुत प्रोटीन से भरी होती हैं. तो ऑलमोस्ट गोश्त के इक्विवेलेंट उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, विच मीन्स कि अगर आप गोश्त नहीं खा रहे, नहीं खा सकते फॉर सम रीज़न, तो आप अगर दाल ले लेते हो उसकी जगह पे, तो उसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस उतनी ही होती है, आपको उतने ही न्यूट्रिएंट्स दालों में से भी मिल सकते हैं. ऑब्वियसली वो भी बहुत पावरफुल हैं, तो बीन्स एंड लेंटिल्स आर पावरफुल. तो इसलिए जब आपने किसी को फुल ऑफ एनर्जी कहना होता है कि ये बहुत एनर्जेटिक है, तो उसको कहते हैं कि ही इज़ फुल ऑफ बीन्स, शी इज़ फुल ऑफ बीन्स. तो नाउ जमील इज़ फुल ऑफ बीन्स मीन्स जमील इज़ वेरी एनर्जेटिक. ऑलराइट, व्हाट इज़ दिस पिक्चर अबाउट? बहुत से लोगों की बहुत हॉट फेवरेट होती है चाय, उसके बगैर नहीं रह सकते. लेकिन चाय का एक बहुत मशहूर इडियम है, It's not my cup of tea. Sorry, it's not my cup of tea. इसका मतलब है कि ये मेरे बस का काम नहीं है. ये जिसके बारे में भी बात हो रही है, it's not his cup of tea. नहीं भाई नहीं, उसके बस की बात नहीं है ये. तो उसको अंग्रेज़ी में मुहावरे के तौर पे कहते हैं it's not my cup of tea. आपसे नहीं होगा, छोड़ दें, आपका बस की बात नहीं है. ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यमी फ्रूट, ऑफ कोर्स पीच, माई ऑल टाइम फेवरेट. लेकिन इसका इडियम क्या है? शी इज़ अ पीच. पीच यूज़ होता है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को क्यूट कहने के लिए, कि बहुत ही क्यूट है, जिसको देख के आपको उस पर प्यार है. जैसे इन पीचेस को देख के आपको इन पर प्यार आ रहा है, वैसे ही तो इसको कहेंगे शी इज़ अ पीच, ये बहुत क्यूट है, बहुत लाडली है. एंड देन वी हैव दिस वेरी यमीलिशियसली लुकिंग बीफ का सालन, जिसको इंग्लिश में स्ट्यू कहते हैं. ये ख़ास तरीके से बनता है और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर डिशेस होती हैं इसकी, मटन स्ट्यू और बीफ स्ट्यू. तो इसमें स्ट्यू का इडियम क्या है? शी इज़ इन अ स्ट्यू. वाओ, लिटरली अगर लें तो इसका मतलब है कि क्या वो सालन में गिर गई है, या कोई सालन में गिर गया, या उसके अंदर मौजूद है. नो, शी इज़ इन अ स्ट्यू मीन्स शी इज़ अपसेट, शी इज़ डिस्टर्ब, शी इज़ नॉट वेल. शी इज़ इन अ स्ट्यू. स्ट्यू वैसे लिटरल मीनिंग में तो कोई सालन है, खाने की डिश का नाम है, लेकिन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में इसका मतलब है कि शी इज़ इन अ स्ट्यू, शी इज़ अपसेट. ऑलराइट, टाइम को लेके भी कुछ हमारे पास इडियम्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और आपको भी ये पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे अपने किसी फ्रेंड के पास हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास हैं, और अब आप इजाज़त ले रहे हैं, खुदाफिज कह रहे हैं, गुड बाइज कह रहे हैं, फेयरवेल ले रहे हैं, तो आप कहेंगे ओ ऑलराइट, इट वाज नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड. क्या मतलब? इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू डिपार्ट, जाने का टाइम आ गया. इट्स नॉट कि आप हथौड़ा लेके, हैमर लेके रोड को हिट करेंगे. नो, दैट्स टू लिटरल. इसका फिगरेटिव मतलब है कि जाने का वक्त आ गया. इट्स टाइम टू हिट द रोड.
Next we have kill time. You don't actually pull a gun on the clock and kill the time, but kill the time का मतलब है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और आप बेजार हो रहे हैं, तो आप टाइम पास करने के लिए या वक्त गुजारी के लिए कोई काम शुरू कर दें. दैट इज़ टू किल द टाइम. देन वी हैव लूज ट्रैक ऑफ टाइम. व्हाट डज दैट मीन? लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब है कि आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता. टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट टाइम इट इज़. और ये हमेशा तभी होता है जब आप सो रहे हो, या जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई बहुत फेवरेट अपनी किताब पढ़ रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो. जब आप अपना कोई भी फेवरेट काम करने में मसरूफ़ होते हैं तो आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता. सो आई वॉज सो इनग्रोस्ड इन रीडिंग दैट नॉवल दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. इस तरह से ये यूज़ हो सकता है सेंटेंसेस में. देन वी हैव बैड टाइम. ये तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि इसका मतलब टूटा हुआ टाइम पीस नहीं है. ऑफ कोर्स बैड टाइम का मतलब है एन इनकन्वीनियंट मोमेंट और एन अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस. कोई बहुत बुरी चीज़, बुरा हादसा, कुछ इस तरह का बैड इवेंट हो जाता है तो उसको आप कहते हैं इट वाज अ बैड टाइम. इट वाज अ बैड टाइम टू कॉल हिम. कि वो बहुत तंग हुआ, उसने बहुत सफ़र किया, उसने बड़ा माइंड किया कि इट्स नॉट अ गुड टाइम टू कॉल मी मैन. इट्स लाइक 12 AM in the night and you're calling me right now. It's a bad time to call. तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. Then we have two more figures of speech. One is called simile and other is called metaphor. There are two of the most famous methods that work very well. They are similes and metaphors. Both of them are widely used by writers to create mental images for their readers and make their text more lively and interesting. Now you see, this is why some of the books are much more interesting and much more captivating than their movies are. For example, हैरी पॉटर की मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी बुक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, डैन ब्राउन के नॉवेल्स इतने कैप्टिवेटिंग होते हैं, मूवीज़ उतनी हिट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके लिए बुक अपलोड की है, उसमें मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है. समटाइम्स ये क्यों होता है? बिकॉज राइटर्स उसमें ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, अपनी लिखाई को इतना खूबसूरत बनाते हैं अपने एक्सप्रेशन को कि आपको पढ़ने में ऐसे लगता है कि आप एक्चुअली उस सीन में मौजूद हैं. यू आर एक्चुअली टेकिंग इट लाइक लाइव. आप उसको फील कर रहे होते हो अपने साथ साथ. तो उसके लिए आप ये दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं. फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ सिमिली इज़. अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. इट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स. लेकिन ये मेटाफोर जैसी नहीं है, दोनों में फ़र्क है. ये क्या करती है? इट हाईलाइट्स द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू थिंग्स थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स. कैसे? ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट. फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट मेटाफोर इज़. Metaphor is again a figure of speech. It is of course used for the stylistic effect. It directly refers to one thing by mentioning another. Let's first see what similes are and how can they be used in daily communication. आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया फूड पांडा से. पिज़्ज़ा आया, लेकिन क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, या पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय बहुत देर से आया, 40 मिनट का वादा करके 1 घंटा 40 मिनट में आया, और जब आया तो पिज़्ज़ा ठंडा हो चुका था. और ऑब्वियसली पिज़्ज़ा तो गर्म ही खाने का मज़ा आता है. तो यू विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड मे बी एंड इरिटेटेड एंड यू से दिस पिज़्ज़ा इज़ एज कोल्ड एज आइस. ये तो बर्फ़ जैसा ठंडा है. तो आप बेसिकली ऑब्वियसली वो बर्फ़ नहीं है, ना ही वो बर्फ़ जितना ठंडा होता है, बट आप उसको एग्जैजरेटेड मैनर में करके बता रहे होते हो उसकी शिद्दत बताने के लिए कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ हॉट पिज़्ज़ा, स्कॉचिंग हॉट पिज़्ज़ा, बट वो इतना ठंडा है कि अब उसको खाया जा ही नहीं सकता गर्म किए बगैर. तो इट्स एज कोल्ड एज आइस. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा प्लीज़ कि पिज़्ज़ा की प्रोनाउंसिएशन क्या है. इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा विच मीन्स PEET, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा. तो आपने अब इसको पिज़्ज़ा नहीं कहना, पिज़्ज़ा. Alright, next. We are like two peas in a pod. Before we understand that, let's understand first what is a pod. मटर की फली जो ग्रीन कलर की होती है जिसमें दाने होते हैं, that is a pod. और peas of course मटर के दाने. तो जिस तरह पॉड के अंदर या फली के अंदर मटर के दाने आपस में जुड़े होते हैं, आप अगर किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं कि हम इतने क्लोज हैं जितने मटर के दाने आपस में क्लोज होते हैं. इट्स अ फन वे, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल.
जब आप सिमिलीज और मेटाफॉर्स और इडियम्स यूज़ करके अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं तो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को भी मज़ा आता है, वो इन्जॉय करता है. नेक्स्ट वी हैव एज प्लेफुल एज अ किटन. किटन्स बहुत प्लेफुल होते हैं, मशहूर हैं किटन्स कि बिल्ली के बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं और उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है. वो या तो सोते रहते हैं या फिर वो किसी न किसी छोटी मोटी चीज़ से खेलते रहते हैं. यहाँ पे मुझे अपना किटन याद आ रहा है, उसका नाम क्रिस्टी था एंड शी वाइट कलर की थी वो, और वो हर चीज़ से खेलती रहती थी. उसको जो भी फर्श पे पड़ा मिलता था वो उसके साथ खेलना शुरू हो जाती थी. तो कोई भी अगर प्लास्टिक का पीस है, किसी चीज़ का रैपर है, तो वो उस सब से खेलना शुरू हो जाती थी. बाद में तो मैं उसके लिए छोटे छोटे टेडी बियर ले आई थी. लेकिन ये मेटाफोर इसलिए यूज होता है कि आप के पास कुछ नहीं भी है एंजॉय करने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ खुद से क्रिएट कर लेते हो, आप एंजॉय करते हो, बोर नहीं होते. तो उसको डिस्क्राइब करने, ऐसे बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए आप कहते हैं ही इज़ एज प्लेफुल एज अ किटन. तो मतलब अपने एंजॉय करने के लिए वो हर सिचुएशन में कोई चीज़ निकाल लेता है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मेटाफोर्स. मेटाफोर्स में हमने कहा कि it directly refers to one thing by mentioning the other. For example, the sun was a gleaming pearl. सूरज एक चमकते हुए मोती की तरह था. Obviously सूरज मोती नहीं होता, मोती की शक्ल का कहीं से भी नहीं होता, ना इतना छोटा होता है, लेकिन उसके सिर्फ चमकने को उन्होंने मोती से तशबीह दे दी है. ये तशबीह देना इज मेटाफोर. Custard is happiness in a bowl. Of course happiness intangible चीज़ है, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. और ऑब्वियसली जब सिर्फ टच नहीं कर सकते तो उसको बोल में भी नहीं डाल सकते. लेकिन यहाँ पे उस कस्टर्ड को उन्होंने कहा है कि कस्टर्ड खा के आपको इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करते हैं, इतना खुश महसूस करते हैं कि कस्टर्ड इज़ लाइक हैप्पीनेस इन अ बोल. द कार सीट इज़ अ फ्लफी क्लाउड. कार की सीट बिल्कुल बादलों की तरह हल्की फुल्की और नरम है. कोई अगर बहुत अच्छे लेदर की या अच्छी क्वालिटी की सीट आपने कार में लगवाई है तो आप उसकी तारीफ करने के लिए उसका एग्जैजरेशन कर देते हो. ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ क्लाउड एंड यू हैव नेवर बीन ऑन अ क्लाउड कि आपको पता हो कि वो कितने सॉफ्ट होते हैं. तो लेकिन आप सिर्फ उनको क्लाउड्स को क्योंकि देखा होता है, उनका टेक्सचर बिल्कुल रुई के गालों की जैसा लगता है. तो जैसे आप उर्दू में कहते हैं कि बादल आसमान में बिल्कुल रुई के गाले लग रहे थे, दे आर नॉट रुई के गाले, बट आप अपना एक्सप्रेशन ब्यूटिफाई करके पेश कर रहे हैं. तो इसी तरह कार सीट इज़ अ फ्लफी क्लाउड. माई सिस्टर्स मेमोरी इज़ अ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी, विच मीन्स कि उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि वो जिस चीज़ को देखती है उसके दिमाग में उसकी तस्वीर की तरह की वो महफूज हो जाती है, उसको एक एक चीज़ उसी तरह याद होती है. माई बेबी ब्रदर इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी बेयर. ऑफ कोर्स इंसान का बच्चा होता है वो टेडी बेयर तो नहीं होता, लेकिन जितना टेडी बेयर हमें नरम और क्यूट और प्यारा लग रहा होता है उसी तरह बेबीज़ भी लग रहे होते हैं. तो हम बेबीज़ को ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, टेडी बेयर या कैट या पांडा या इस तरह की चीज़ें. तो ये सब चीज़ें मेटाफोर्स होते हैं. Then we have another one. I'm sure ये आप सब ने बहुत सुना होगा. Her heart is a cold iron. This metaphor is used to indicate lack of sensitivity. कि वो बिल्कुल भी sensitive नहीं है, उसको किसी चीज़ का असर ही नहीं होता. आप उसके सामने रोते भी रहें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता. तो उसका दिल बिल्कुल पत्थर जैसा है. उसको इंग्लिश में कहते हैं her heart is a cold iron. Alright. Then we have personification. ये एक और फिगर ऑफ स्पीच है और ये क्या करता है? Personification is an anthropomorphic metaphor in which a thing or abstraction is represented as a person. Let me explain it further. Personification is the attribution of a personal nature or human characteristic to something non-human. यानी कोई non-living चीज़ है और आपने उसको इंसानों की तरह का एट्रीब्यूट या क्वालिटी दे दी है. यानी कि अगर कोई इंसान होता तो वो किस तरह करता है इस सिचुएशन में, आपने किसी नॉन लिविंग चीज़ को उससे तशबीह दे दी. फॉर एग्जांपल, विंड तो विसल नहीं करती, लेकिन जब हवा चलती है तो उसकी साई साई की आवाज़ें आती हैं तो वो सीटी की तरह ही महसूस होती हैं. तो आप विंड को जो कि आप ना देख सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं. द विंड विसल थ्रू आउट द डे, यानी सारा दिन हवा चलती रही. ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है इस बात को कहने का. आप ये भी कह सकते थे द विंड इज़ ब्लोइंग, द विंड ब्लोड द एंटायर डे,
द विंड ब्लू द एंटायर डे, लेकिन आपने ये नहीं कहा, आप उसको ब्यूटिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन में ला रहे हैं, यानी यू आर ट्रीटिंग द विंड एज इफ इट वर अ पर्सन। ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो ह्यूमन हो, बट वो ह्यूमन नहीं है, वो इनह्यूमन है या नॉन लिविंग है। सो यू आर सेइंग द विंड विसल्ड थ्रू आउट द डे। Then we have this one. It's very interesting. One look at the garden and you could tell that the plants were begging for water. यानी बेचारे इतने मुरझाए हुए थे कि आपको एक नज़र में ही पता चल जाता कि बेचारों को पानी की बहुत ज़रूरत है। So plants were begging for water. Of course they are not begging. उनका मुंह नहीं होता, उनकी आंखें नहीं होती, उनके हाथ भी नहीं होते जो यहाँ बनाए हुए हैं, लेकिन आपको देख के पता चल जाता है कि बेचारों को पानी की कितनी ज़रूरत है। So this is how you communicate about it. The leaves danced their way through the lawn. For example, ख़ज़ां का मौसम है और उसमें पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं, और जब हवा चलती है तो पत्ते उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आप उन पत्तों को का उड़ना जब डिस्क्राइब करते हैं तो आप मेटाफोरिकली या पर्सोनिफिकेशन करके उसको कहते हैं The leaves danced their way through the lawn. लॉन में एक जगह से दूसरी जगह डांस करते हुए जा रहे हैं। Alright, time for the daily dose. आई एम श्योर कि आपने कल के डेली डोज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लर्न की होंगी। आज हमने बहुत फन लर्निंग वे में चीज़ें इंजॉय की। हमने पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने ईडियम्स एंड सिमिलीज के बारे में, मेटाफोर्स के बारे में पढ़ा। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम एसे और स्टोरी राइटिंग में करेंगे। सो यू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट मोर एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर फिगर्स ऑफ स्पीच इन द कमिंग लेक्चर्स एज वेल। What we have in daily dose is again very interesting, and this is going to be used a lot. So you have to pay attention. ये बहुत important daily dose है आज का, और ये हम written, verbal दोनों तरह की communication में use करेंगे। और जब level 2 में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप जब speaking practice मेरे साथ करोगे तो उसमें ज़रूरी होगा कि आपके सामने ये हो, ताकि आपको बार बार practice करके याद हो जाए। ये क्योंकि बहुत इफेक्टिव तरीका है, और फिर आगे जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो या इवन डेली लाइफ में आप इंग्लिश यूज़ करते हो, तो नोबडी कैन टेल कि इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड यू नो एक्वायर्ड इट। वो ऐसे ही लगता है जैसे नेटिव अमेरिकन बोलते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारी? यू हैव टू यूज सम अल्टरनेटिव टू वेरी, मतलब यू जस्ट से नो टू वेरी। क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम एग्जैजरेट करके जब हमने बताना होता है कि वन थिंग इज़ बीइंग अफ्रेड, डरना, एंड वन थिंग इज़ बीइंग वेरी अफ्रेड, यानी बहुत ज़्यादा डर जाना। तो जो बहुत ज़्यादा डर जाना है उसमें हम वेरी ऐड करने के बजाय हम उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, दैट इज़ फियरफुल। वेरी एंग्री की जगह आप कहें ही वाज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसी तरह वेरी ब्यूटीफुल को हम वेरी ब्यूटीफुल कहने के बजाय हम उसको कहते हैं गॉर्जियस। you're looking just gorgeous, यानी कि इंतहाई खूबसूरत। तो दैट इज़ अंडरस्टूड, लेकिन आप वेरी के इस्तेमाल से बच रहे हो, बिकॉज वेरी जो है ये बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश है। तो उससे अब हमने आगे जाना है, हमने इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक जाना है, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको ये एक्सप्रेशंस आते हों। मैं इनमें और भी कमिंग लेक्चर्स में ऐड करूँगी, बट यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and we'll be doing some exercise in the PW about this one. Very colorful, vibrant. तो आप for example this shirt piece is very vibrant, which means कि उसमें बहुत सारे कलर्स हैं तरह तरह के, लेकिन very colorful is just a basic English कि आप बहुत ज़्यादा रंगों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कह रहे हो। तो very competitive यानी कट थ्रोट का मतलब है कि you have to ट्राई एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड टू कीप अप। आपको सर्वाइव करने के लिए कंपेटिटिव बहुत इन्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जितना कैलिबर है, जो मेरे जितने हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट हैं, और अगर मैंने ज़रा सी भी लापरवाही की तो मेरे से आगे निकल जाएंगे पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में। तो उसको कहते हैं बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। वेरी काम को आप कहेंगे सीरीन, यानी कि बहुत पुरसुकून। तो इसी तरह आप वेरी जब डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज़ करें तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये रेड कलर में मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिख दिए हैं। तो आपका काम ये है कि आपने इस लिस्ट को पढ़ना है एंड वेट फॉर द PW, एंड विल बी डूइंग सम एक्सरसाइजेज, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज अराउंड ऑल ऑफ दिस टुडे। सी यू सून।